Welcome, friends. Very good evening to each one of you. Let's start with a quick recap. Whatever we have done, what are we doing? We are doing this 7 rules of toppers, C edition. Thus far, we have covered almost half a journey. Rule 1, 2, and 3. What are the rules? Let's see. Take charge, don't wait is rule number 1. Rule number 2, see the finish line first. Rule number 3, prioritize like pro. Today, we'll be talking about win together. That is rule 4. Before that, let's have a quick recap of rule 1, 2, 3. What we do? We talk about in little detail about the rule which we have discussed yesterday, that is prioritize like a pro. And then the prior to that, whatever rules we have discussed, we go through the points only. So the first rule, take charge, don't wait. We have discussed 5 concepts of the points: reactive to proactive, circle of concern, and circle of influence, 3 levels of brain, 4 human endowments, and becoming a transition figure. Then we moved to rule 2, which is see the finish line first. There we understood a lot of things like see do get. All things are created twice. Vision precedes victory. The psychology of goal setting. Mission statement. Activity versus goal-driven preparation. The science of reverse planning. Building your study blueprint, and maintaining momentum. Then yesterday, friends, we moved to rule 3, which is prioritize like a pro. The mantra of prioritize like pro is busyness to effectiveness. Study what actually moves marks and mastery. To sum it up, rule 1 says that you are a programmer. Rule 2 says that you can write the program. You have that mission statement. How are you going to become chartered accountant? And rule 3 is saying now run the program. What's this running the program? This run the program is learning habit. How we learn. So the first thing which we discussed yesterday was how we learn. 10% by reading, 20% when we hear something, 30% when we see something, 50 see and hear, 70 discuss, 80 experience, and 95% teach. This is a very powerful concept, and this we understood yesterday. Then we understood that we must identify the first things. हमें पहले करना क्या है? आज दिन शुरू हो गया. आज के दिन में क्या क्या करना है? मिशन स्टेटमेंट से अलाइंड क्या क्या होना है? और वहां जो बहुत खूबसूरत बात हमारे सामने समझ में आई, जो हम लोगों ने कल देखी थी, वो ये देखी थी कि अगर हमने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को इग्नोर किया तो हमें दिक्कत आएगी. सो व्हाट वाज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रियली एसेंशियल इज टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन द इंपॉर्टेंट relationships. Important relationships, if maintained correctly, then will be in a position to help you out in doing whatever you wish to do over a period of time. So this is the very primary focus. This we understood. How we understood? That if you are comfortable, 3 levels of brain, neocortex, if you are comfortable, from the limbic session, which is talking about the relationships, reptilian, limbic and neocortex, जैसे ही लिम्बिक शांत हो जाता है, रिलेशनशिप्स नॉर्मल है, कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं है, तो फिर नियोकॉर्टेक्स तक बात जाती है. तो आइडेंटिफाई फर्स्ट थिंग्स, दैट इज रिलेशनशिप्स, एंड देन इन दिस you need to identify the roles in every relationship. Who is expecting what from you? That is the roles. If you are in a position to identify those roles,
then it will be really easy for you to work on those roles. And now, on the basis of the relationships and roles, your activities will be very clear and you will be able to understand what are you supposed to do today. This we have understood under one simple methodology, one simple thing, that what is first? What should we do? Identify the first things. Then we move to time management matrix. Understood this powerful concept of urgent and important. We realized that most of the time, if spent in this quadrant 1, then will not deliver the proper results. From where are you going to get the results? The highly effective students spend their time in this quadrant 2. What are you supposed to do? Is to say complete no to quadrant 3 and 4. Then we also understood another very powerful concept, which is 80-20. कहां से मार्क्स आएंगे, क्या पढ़ें तो अच्छा हो जाएगा। यहां दोस्तों मैं आपको बहुत क्लैरिफाई कर दूं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। एक बार तो पूरा स्टडी मॉड्यूल पढ़ ही लीजिए। अगर एक बार पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो फोकस एरिया है वो समझ में ही नहीं आएगा। एक बार पूरा स्टडी मॉड्यूल पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए, हल्का फुल्का पर्सपेक्टिव मिल जाए, एंड देन we'll start talking about what is important, what has to be done to score good marks. So 80-20 रूल वहां उसके बाद हमारा इंप्लीमेंट होगा। हमने ये भी देखा कि 80-20 रूल में स्कैनर आपकी कैसे मदद करता है, और ये स्टडी मटेरियल बेस्ड कंटेंट जो है हमारा, सारे चैप्टर्स स्कैनर के पूरी तरह से अलाइंड हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से। जैसे सीए फाउंडेशन का ये आपके सामने है, जहां आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 2.1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2.2 है कंसिडरेशन, 2.3 है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 2.4 है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहां कहां से किसको हम कितना वेटेज दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये भी आपके सामने बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। यहां से आप समझ पाते हैं कि किसको हमने ए माना, किसको हमने बी देखा, और कहां से ए और बी आया, ये भी हमने आपको बताया था कि ए और बी लाने के लिए हम करते हैं ये स्टार रेटिंग का इस्तेमाल। ये भी आपके स्कैनर में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। अगर आप हमारी इंपॉर्टेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं या उसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो ये स्टार रेटिंग भी आपके पास अवेलेबल होती है, जहां आप समझ पाते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट के हिसाब से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और कंपलसरी क्वेश्चंस के हिसाब से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एक्ट 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि 2.4 विच इज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट भी हमें कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? 5 स्टार है ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 4 स्टार है ये कंपलसरी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसकी मदद से ये समझ पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या हम कम पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ना पढ़ें, लेकिन कहाँ ज्यादा फोकस करें, 11th आर रिविजन कहाँ हो, किस चीज को बार बार रिपीट करते रहे, रिवाइज करते रहे, जिससे वो नियो कॉर्टेक्स से मसल मेमोरी में आ जाए। क्वेश्चन देखा, जवाब लिखना शुरू हो गया, उतना आपका माइंड शार्प हो जाए। 6 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस हमने देखी थी, विच वॉज ऑर्गेनाइज वीकली। डेली अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके पिटफॉल्स हैं, डेली के चैलेंजेस कभी कभी बदल जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइज वीकली कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आज मंडे अगर कुछ नहीं हो पाया तो ट्यूसडे कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे। अगर मंडे ज्यादा मौका मिल जा रहा है, जो कंटिजेंसी के लिए आपने अपने पास कुछ क्वेश्चन रखा था, बफर रखा था, वो उस तरह की कोई कंटिजेंसी नहीं आई, तो ट्यूसडे वाला काम भी आप मंडे को कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंटीग्रिटी,
आप देख लीजिए कि क्या आपको किस समय करना है, वो करिए, अपने मिशन से अलाइन रहिए। इवैल्यूएट, लगातार देखते रहिए कि एज पर प्लान आप चल रहे हैं या नहीं। कनेक्ट टू मिशन, रिव्यू रोल्स, लगातार देखते रहना होगा कि कब क्या करना है, एज ए स्टूडेंट, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए फ्रेंड, एज ए सेल्फ लर्नर। और जैसे जैसे आप अपने रोल्स को रिव्यू करते जाएंगे, उसके अंदर आपके गोल्स क्लियर हो जाएंगे और उन गोल्स के हिसाब से एक्टिविटी जो आपको क्लियर आएगी। आइडेंटिफाई गोल्स, रिव्यू रोल्स एंड देन डू वॉट एवर यू आर रिक्वायर्ड टू डू। बिग रॉक्स, क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, आज क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, इस हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, दैट्स बीइंग टर्म्ड एज बिग रॉक्स। सो मैनेज द पेबल्स एंड सैंड विदाउट लूजिंग योर फोकस ऑन द बिग रॉक्स, जो आपको करना ही होगा। ये जो हमारा एक पूरा सप्ताह है, इट इज लाइक अ जार। इस जार में कितना फिट इन हो पाएगा। बिग रॉक्स अगर पहले आपने डाल दिए तो फिर आप सैंड के लिए, पेबल्स के लिए जगह होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। कैसे करें, कभी कभी बड़ी क्राइसिस होती है। मुझे बड़ा मजा आता है इसको समझने में, और मैं खुद भी कैसे करता हूं। अक्सर ये करता हूं कि बिग रॉक्स को अर्ली मॉर्निंग निपटा दिया या लेट इवनिंग के लिए शेड्यूल कर लिया। मैं तो खैर ज्यादातर लेट इवनिंग में नहीं काम करता, अर्ली मॉर्निंग कर लेता हूं। अर्ली मॉर्निंग कोई क्राइसिस है ही नहीं, सब सो रहे हैं, मैं अपना उठ के पढ़ाई कर ले रहा हूँ। मुझे मालूम है कि नया कॉन्सेप्ट कौन सा लेना है, रिवीजन क्या लेना है, मैंने अर्ली मॉर्निंग निपटा दिया। सो यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड where the big rocks are and how to put them, prioritize them in this jar of a week। ये 7 दिन के जार में आप कैसे इसको रखने जा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है जो बिग रॉक्स के अलावा है, तो कैसे उसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मुझे याद है वो जो छोटा वाला बच्चा आपको दिखता है लास्ट स्लाइड में, तुषार, सीए तुषार कुमार, उसकी मैं कहानी बताऊं आपको, बड़ी मजेदार। उसने 2.5 साल में सीए किया था। मैंने, ट्रेनिंग तो पूरी होगी ही, सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल फर्स्ट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। कैसे किया। लिमिट सोशल मीडिया। 2 सिम उसके पास होते थे मोबाइल में, दोनों उसने तोड़ के फेंक दिए थे जब फाइनल की तैयारी कर रहा था। किसी से बात नहीं करता था, अलग कमरे में रहता था, उसकी माँ उसके लिए खाना पहुंचा देती थी। इतना उसने मिनिमाइज कर दिया था अपनी अदर नेसेसिटीज को, यानी रेप्टिलियन और लिम्बिक जीरो। सारा ब्लड फ्लो कहां, न्यू कॉर्टेक्स पे। अब देखिए मजा, करके देखिए एक दिन, इतना मजा आएगा आपको कि आपकी पढ़ाई कई एक्स बढ़ जाएगी। इस दिस विल सपोर्ट द बिग रॉक्स। प्रैक्टिस सेइंग नो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो काम मुझे नहीं करना है, तो यू मस्ट नो हाउ टू से नो। एंड ट्रैक डिस्ट्रैक्शन, कहां कहां आपको डिस्ट्रैक्शन आता है उसको ट्रैक करते रहिए। हाउ टू शेड्यूल योर बिग रॉक्स इफेक्टिवली, वीकली प्लानिंग, 30-10 प्रॉमिस। 30 मिनट्स वीकली प्लानिंग पर देना होगा, 10 मिनट्स डेली देना होगा। ब्रेक इनटू चंक्स, स्टे अकाउंटेबल। स्मार्ट स्टडी के लिए मेरी बहुत सारी वीडियोस स्कैनर अड्डा, स्कैनर के चैनल पे पड़ी हुई हैं। यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड फाइंड स्मार्ट स्टडी की बहुत सारी वीडियोस मेरी वहां हैं। फिर हमने एक बहुत मजेदार चीज देखी थी, बैलेंसिंग पी एंड पीसी। पीसी इज प्रिपरेशन कैपेसिटी। आप कितना पढ़ पा रहे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं किस पे डिपेंड करेगा, रेस्ट एंड स्लीप पर। कितना आपने आराम किया हुआ है, आप अभी कर भी पा रहे हैं कि नहीं, रेस्ट एंड स्लीप पे आपको वो मदद करेगा। हेल्थ एंड एक्सरसाइज पे से डिपेंड करेगा। मेंटल क्लैरिटी कितनी आपको है, इस पे डिपेंड करेगा, जो हम आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं। और इमोशनल रिन्यूअल, रिलेशनशिप आपकी कितनी बैलेंस है, इस पर डिपेंड करेगा। जैसे ही ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में आती हैं, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप करके देख लीजिए, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ही जाएगी
जैसे ही आपकी प्रिपरेशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि प्रिपरेशन कैपेसिटी को मत इग्नोर कीजिए, और जैसे ही आप प्रिपरेशन कैपेसिटी को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन अपने आप इंप्रूव कर जाएगी। यू कांट मैनेज टाइम, यू कैन मैनेज ओनली प्रायोरिटीज। वही 24 घंटा सबके पास है और किसी के पास कुछ नहीं है। सो you can choose only your priorities. So friends, in this manner, we have done a little recap, understood how are you going to implement this rule number 3. 6 learning goals were there. Identify first things, time management matrix, 80-20 principle, 6-step process, balance preparation and preparation capacity, and mission aligned plan. इतनी बात के बाद आइए आगे बात करते हैं, आज की बात करते हैं। दिस इज विन टुगेदर। रूल 4, विन टुगेदर। व्हाट इज दिस? वी हैव अंडरस्टूड अ वेरी पावरफुल थिंग विच इज 3% टीच। सेकेंड रूल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सी डू गेट, और थर्ड रूल जब हमने कल पढ़ा, समझा, तो हमने समझा कि 3% टीच इज अ वेरी पावरफुल थिंग। When you work together, then the learning enhances like anything. So, how can you win together? मैंने आपसे कल शेयर भी किया था कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सीए चार्टर्ड सीए शाश्वत सिंह साहब, और जब मैं खुद सीसा कर रहा था और सर भी सीसा कर रहे थे, तो हम लोग कैसे एक साथ पढ़ते थे। तो विन टुगेदर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है विन विन माइंडसेट। हमारी डीप स्क्रिप्टिंग है। क्या स्क्रिप्टिंग है? 6 पैराडाइम्स के हिसाब से है। 6 पैराडाइम्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हम सोच सकते हैं, आगे देखते हैं। जो हमारी डीप स्क्रिप्टिंग है वो है विन लूज, यानी मैं जीत जाऊं और दूसरा हारे। जब तक दूसरा हारेगा नहीं तब तक मैं जीतूंगा नहीं। अच्छा, क्या सबको सीए में फेल हो जाना चाहिए तभी आप पास हो पाएंगे? ये तो अजीब बात हुई। रैंक में तो मैं मान सकता हूं कि अगर किसी एक की रैंक आएगी तो बाकियों की रैंक नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई पास हो जा रहा है तो सारे पास हो सकते हैं। दिस इज विन लूज। सक्सेस एट अदर्स एक्सपेंसेस इज द विन लूज। मोस्ट कॉमन स्क्रिप्टिंग डिफॉल्ट माइंडसेट फॉर मेनी पीपल। ज्यादातर लोग, हम लोग, हमारी सबकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो यही है कि मैं जीत जाऊं दूसरा हार जाए। दिस इज अथॉरिटेरियन अप्रोच ड्रिवन बाय कंपैरिजन, कंपटीशन एंड पोजीशन एंड पावर। यानी मुझे मिल जाए दूसरे को ना मिले। दिस यूजेस पोजीशन एंड पावर, leverages credentials, possessions, and leads to personality to win. अच्छा, अगर सब फेल हो जाएं और केवल आप ही पास हो तो क्या ये पॉसिबल है? यू कैन थिंक अबाउट इट। दूसरा हो सकता है लूज विन। हाई कंसिडरेशन, लो करेज, लेट अदर्स विन while you lose। आप पास हो ना हो, दूसरा जरूर पास हो जाए। दिस lacks courage to express feelings and beliefs। नो स्टैंडर्ड्स और डिमांड्स, आप अपनी बात कहीं कह ही नहीं पा रहे हैं। इससे भी आप कब तक चल पाएंगे? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन दिस प्रेमाइस फॉर लॉन्ग। तीसरा माइंडसेट हो जाता है लूज लूज। आपने खूब देखा होगा बचपन में जो कुछ शैतान बच्चे होते हैं वो अगर खेल हारने लगते हैं तो बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ के भाग जाते हैं। यानी उनको लगता है कि अगर वो नहीं जीत रहे हैं तो कोई ना जीते, खेल ही बिगाड़ देंगे, खेल खत्म कर देंगे। दिस इज लूज लूज व्हेन नोबडी विंस। इट इज हाईली डिपेंडेंट माइंडसेट, low courage, low consideration, no win scenario, nobody benefits from interaction, long term results poor। कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपको बार बार ये लो करेज, लो कंसिडरेशन कुछ चीजें मैं अभी बता रहा हूं, ये है क्या, इसकी बात हम अभी करेंगे। दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई विल टॉक अबाउट दिस। दिस इज करेज एंड कंसिडरेशन।
अभी इसकी बात करते हैं इसी इसी रूल 4 में। विन क्या है? सेल्फ सेंटर्ड सक्सेस। दूसरा, जिए मरे, पास हो ना पास हो, हारे जीते, सानू की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थिंक ओनली ऑफ गेटिंग वॉट यू वॉन्ट। नो सेंसिटिविटी टू अदर्स इन interdependent situations. It is self-centered, thinks me first, indifferent of others, doesn't care if others win or lose. Scarcity mentality, believes resources are unlimited. Then, friends, we have win-win. It's a perfect mindset, the foundation of mutual success. जो मैंने आपसे एग्जाम्पल शेयर किया कि शाश्वत साहब एक टॉपिक मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं एक टॉपिक शाश्वत साहब को पढ़ा रहा हूं। कुछ नोट्स शाश्वत साहब ने बना लिए, कुछ नोट्स मैंने बना लिए, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिए। सर्च फॉर सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई एवरीवन। प्रैक्टिस कोऑपरेशन ओवर कंपटीशन। दिस सीक्स म्यूचुअल बेनिफिट, कोऑपरेटिव नॉट कॉम्पिटिटिव, लिसन्स मोर, कम्युनिकेट्स विद करेज। आप भी समझ पाते हैं कि आपको क्या चाहिए और दूसरे को क्या चाहिए, ये दोनों बातों में कोई तालमेल आप बिठा पाते हैं। इसके ऊपर भी एक और है, दैट इज विन विन और नो डील, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विन विन। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बात बन नहीं रही है, आप तो कह रहे हैं, आरव तो कह रहे हैं कि मीरा भी पास हो जाए। आप देखिए, आरव और मीरा दोनों बात कर रहे हैं। आरव तो कह रहे हैं कि मीरा भी पास हो जाए, लेकिन मीरा की समझ में ये बात नहीं आ रही है। आरव इज हैविंग दिस माइंड दैट बोथ ऑफ देम शुड क्वालिफाई, लेकिन मान लेते हैं कि मीरा की समझ में ये बात नहीं आ रही है। सो इट्स नो डील। अब नहीं आ रही है तो ना आए, नो डील। अब मीरा के साथ ये विन विन रिलेशनशिप स्टेब्लिश फिलहाल नहीं हो पा रही है। अब अगर आरव को मान लीजिए कोई स्टडी पार्टनर चाहिए ही, तो ही मे लुक फॉर सम अदर पर्सन हु मे हैव दिस विन विन माइंडसेट। सो विन विन और नो डील, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विन विन, it seeks win-win first. If not acceptable, no acceptable solution exists. Agree to disagree agreeably. देखिए, ये बहुत बहुत सुंदर बात है। Agree to disagree agreeably, माने हम इस बात पे एग्री कर जा रहे हैं कि हम लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कैसे एग्री कर रहे हैं? अग्रीएबली कर रहे हैं, एमिकेबली कर रहे हैं, झगड़ा झंझट नहीं है। वी अंडरस्टैंड, वी अप्रिशिएट दैट वी विल नॉट बी एबल टू वर्क टुगेदर। यार, पढ़ाई साथ साथ नहीं हो पा रही है, तेरा भी नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। Allows each party to say no, freedom to walk away respectfully, more realistic at beginning, best approach for new relationship or deals. आपका कोई नया दोस्त बना है, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कोचिंग के लिए किसी दूसरे शहर गए हुए हैं, तो आप संभाल के चलिए, एकदम से विन विन हो जाएगा मालूम नहीं। दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विन विन, प्रिजर्व्स रिलेशनशिप्स एंड इंटीग्रिटी। तो दोस्तों, ये हुई बात विन विन माइंडसेट की, यानी हमने एक चीज देखी, विन विन माइंडसेट। अब विन विन माइंडसेट के लिए आपको खुद पर बहुत भरोसा चाहिए। आर यू कॉन्फिडेंट? आर यू इन अ पोजिशन टू टॉक अबाउट यू? डू यू नो अबाउट योर कैपेबिलिटीज? आर यू इन अ पोजिशन टू मैनेज द टेंट्रम्स ऑफ द लाइफ? जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप उसको संभाल ले जाएं? ऊंच नीच हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर ले जाएं? ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग नोन एज कॉन्फिडेंस सेंसेक्स। अब ये क्या है कॉन्फिडेंस सेंसेक्स? आइए इसकी बात करते हैं। दिस इज कॉन्फिडेंस सेंसेक्स। दिस अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, द कॉन्फिडेंस सेंसेक्स, measuring the pulse of your self-belief. In 1989, a new word for Indian stock exchange was coined by Mr. Deepak Mahoni, who is IIT Kharagpur engineer. I am Kolkata graduate. He created the word Sensex. What does it mean?
sensitive index. It's more than numbers. Not just share prices rising and falling, but the pulse of the nation confidence goes up and down. आपने देखा होगा कि कोई भी डिसीजन होता है, कोई इलेक्शन जीत गया, कोई इलेक्शन हार गया, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया, कहीं तूफान आ गया, कहीं स्ट्राइक हो गई, सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता है। ये पल्स लेता है। बहुत बढ़िया। अगर ये हमें पता चल गया कि ये पल्स लेता है, तो वी अंडरस्टैंड व्हेन बिलीफ राइजेस मार्केट सो, व्हेन फियर टेक्स ओवर दे फॉल। इतनी सी बात है। फसल अच्छी हो गई, मार्केट बढ़ गया, तूफान आ गया, मार्केट गिर गया। यू आर द इकोनॉमी। Assume, take, understand that you are economy, you are share market. Your confidence is equal to your Sensex. आप खुद पर कितना भरोसा कर पा रहे हैं, ये आपका सेंसेक्स है। सम डे अनस्टॉपेबल, सम डेज फुल ऑफ डाउट। ये हम सब के जीवन में होता रहता है। कभी हमको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, आज सुबह पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है, जैसे लगता है पता नहीं क्या कर लेंगे। और कभी कभी लगता है कि नो, डे इज गोइंग लो। Same person, different days, same preparation, same abilities, one difference, that is confidence level. कॉन्फिडेंस लेवल ही फर्क हो गया तो बंदा वही है, पर्सन वही है, लेकिन उसका प्रिपरेशन फर्क हो जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल का ही सारा खेल है। सो यू आर द इकोनॉमी, योर कॉन्फिडेंस is equal to your Sensex. How your Sensex is moving, you need to understand, and you need to control it. Oh my God. Can you control it? Let's see. Let's understand. That is the magic. That's the game. Your confidence Sensex is sensitive to news. क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ता घटता रहता है। टीचर ने तारीफ कर दिया, जंप कर गया। कब नीचे जाएगा? जब मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ गए। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, नीचे आ गया। टॉपर सक्सेस स्टोरी पढ़ लिया कहीं, स्पाइक्स अगेन। कहां ऊपर जा रहा है, कहां नीचे जा रहा है, कहां ऊपर जा रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं दैट दिस इज सेंसिटिविटी टू न्यूज। क्या आपने सुना, उसी से फर्क पड़ गया। एक, दिस इज पॉइंट नंबर 1। और क्या होता है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस सेंसेक्स बढ़ता घटता रहता है, और बहुत सारी बातें हैं, इसकी बात हम करते हैं। बट एज अ टॉपर, एज अ पर्सन हु वुड लाइक टू स्कोर हाई, वुड यू लाइक टू वेट फॉर समवन or the perfect condition so that you may be happy about your confidence? परफेक्ट कंडीशन के लिए इंतजार करेंगे? पता नहीं। लेट्स क्रिएट योर ओन बुल रन। आइए देखें कि हम अपने लिए अपना कॉन्फिडेंस सेंसेक्स कैसे बना ले जाएं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मैनेज पोर्टफोलियोज, टॉपर्स मैनेज इमोशंस। बाहर कुछ भी हो, मैं कंट्रोल में हूं। दे कंट्रोल रिएक्शंस टू सेटबैक्स, they stay focused on long-term goals. Don't panic, sell their dreams. बहुत जल्दी से ये छोड़ के भाग नहीं जाना है, ये अटेम्प्ट नहीं छोड़ देना है। इस पेपर की प्रिपरेशन बाद में कर लेंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होना है। हम तो आज जो मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, उस पर काम करेंगे। टॉपर्स रैंकर्स मैनेज देयर इमोशंस। सेटबैक लाइफ में आते रहेंगे, दिक्कतें आती रहेंगी, उससे परेशान नहीं होते। दे स्टे फोकस्ड। कैसे?
आइए और समझते हैं। द टॉपर्स, वेयर इज माई कॉन्फिडेंस सेंसेक्स राइट नाउ। आपका सेंसेक्स इस समय कैसा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? आप लिखिए चैट में। देखते हैं आपका कि आपका सेंसेक्स क्या भाव चल रहा है। मान लेते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1000, ऑन अ स्केल ऑफ 1000 यू रेट योरसेल्फ, कि आज आपका कॉन्फिडेंस स्कोर क्या है, आपका सेंसेक्स कहां है। लिखिए चैट में। ऑन अ स्केल ऑफ 1000, मान लेते हैं कि 1000 तक जा पाता है आपका अपना सेंसेक्स, तो आज आपका सेंसेक्स कहां है? 500 पर है, 600 पर है, 800 पर है, अभी तक 1000 ही गया है, इसके ऊपर जाता नहीं है। तो अब फ्लक्चुएट होके कहां है? 500। No, a person is saying 500. Another one is saying 700. That's great. Someone is saying 820. Good. आइए देखिए कि जब आपको अपना सेंसेक्स कहीं जाता आता दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। When the confidence सेंसेक्स इज फॉलिंग, कब गिरता है? सिम्टम्स, यू केव इनटू पीयर प्रेशर्स इजीली। एक एक करके आराम से समझते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ी मत कीजिएगा। यू केव इनटू पीयर प्रेशर्स इजीली। दोस्तों ने कहा कॉफी पीने चल, आप चल दिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, यू कॉपी अदर्स स्टडी प्लान, जबकि आपके पास तो अपना स्टडी प्लान होना चाहिए, आपका अपना स्टडी स्टाइल है। मार्केट एनालॉजी, इट इज पैनिक सेलिंग, रिएक्टिंग टू मार्केट रूमर्स। दिस इज इंपैक्ट ऑफ पीयर प्रेशर ऑन यू। दूसरा, यू रेसल विद डिप्रेशन और इंफीरियोरिटी। सब में होता है, कभी ज्यादा कभी कम। जब ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? यू कंपेयर योर सेल्फ और द मार्क्स और द अटेम्प्ट्स विद अदर्स एंड फील यू कुड नेवर मेक इट, हो नहीं पाएगा। अब मार्केट एनालॉजी इसकी कहां आ रही है? मार्केट एनालॉजी है, इट इज लाइक मार्केट slump due to low investor sentiment. Okay, if it is so, then what may be the third one? The third one is you overly concerned about what others think about you. You post study reels for links instead of actual studying. होता है। Market is driven by the hype. Check it. Is it real? It's a bubble which will burst over a period of time. आगे कुछ और बातें हैं। You act arrogant to hide insecurities. हर एक में होती है इनसिक्योरिटी, आप में है तो कोई नई बात नहीं है, मुझ में भी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, यू बोस्ट अबाउट स्टडिंग लेट नाइट बट सीक्रेटली फील लॉस्ट। मुझे याद है when I was appearing in one of the examinations, यूनिवर्सिटी examinations, एक बच्चा जो मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल तक जाता था, वो आया सुबह सुबह 7 बजे से हमारा एग्जामिनेशन था, वो 6 बजे आया। 6 बजे वो आता था, हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते थे और तब जाता था। वो आया, उसने दरवाजा खोला और बताया, अरुण मैं सारी रात से पढ़ रहा हूं। यू बोस्ट अबाउट स्टडीइंग लेट नाइट्स बट सीक्रेटली फील लॉस्ट। इट इज लाइक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, अनसस्टेनेबल राइज। इस बच्चे का क्या हुआ? ये बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में पसीना पसीना हो गया पेपर देखते ही। यू सेल्फ डिस्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड, द वर्स्ट थिंग आई हैव सीन इन लाइफ, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट। क्या हो जाता है? यू स्टार्ट एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शंस, यू बिंज वॉच, स्क्रॉल एंडलेसली और इंडल्ज इन नेगेटिविटी। इट इज लाइक स्पेक्युलेटिव क्रैश। यू गेट जेलस व्हेन अदर्स सक्सीड। आपको याद है 3 इडियट्स? जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और जब
दोस्त टॉप कर जाता है तो और ज्यादा दुख होता है। यू गेट जेलस इजीली व्हेन अदर्स सक्सीड। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये सेंसेक्स गिर रहा है। अ फ्रेंड स्कोर्स बेटर, योर मूड डिप्स इंस्टेंटेनियसली। दिस इज लाइक राइवल मार्केट पैनिक। अगर ये है जो बताता है कि कहां से हमारा फॉल दिख रहा है, तो आइए देखें कि कहां से अप दिख रहा है। When the confidence sensex is rising, what will happen? Symptoms: you stand up for yourself and resist peer pressure. कोई कुछ भी कह रहा है, आप मान नहीं रहे हैं, आपको जो करना है आप वो कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स: यू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस इवन इफ अदर्स लाफ। हंसने दीजिए, जब मैच देख रहे हैं देखने दीजिए। होल्डिंग स्ट्रांग ड्यूरिंग वोलेटिलिटी। दूसरा, यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ पॉपुलैरिटी। What people think about you is none of your business. Let them think. You're not obsessed. You study quietly without broadcasting everything. सब कुछ सबको बताने की जरूरत नहीं है. Investing for long-term growth. You see life as generally positive. That is not negative, it's positive. You believe bad days don't define you. Market correction, not crash. You trust yourself. You rely on your own revision plan, meaning thereby that you have strong fundamentals. So दोस्तों, अगर इतनी बात हो रही है तो इसका मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस सेंसेक्स अच्छा चल रहा है। और भी कुछ सिम्टम्स हैं, क्या क्या है? यू आर गोल ड्रिवन। आपके पास तो मिशन स्टेटमेंट है, रूल 2 में हमने बना लिया। यू ट्रैक प्रोग्रेस डेली एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड ऑफ योर पोर्टफोलियो। You are happy for others' success. You celebrate peers' rank genuinely. बहुत अच्छी बात है, मजा आया। ओ उसका रैंक आई, वेरी गुड। इट इज कोलैबोरेटिव ग्रोथ अक्रॉस सेक्टर्स। ये दोस्तों हमने समझा कि कैसे हमें पता चलता है कि हमारा इंडेक्स लो जा रहा है या अप जा रहा है। अब अगर पता चल गया तो आइए इस पे काम करते हैं। कैसे काम करें? लेट्स वर्क ऑन इट। पॉजिटिव वाइब्स कहां से आएंगी? which is going to raise your confidence sensex? Keep promises to yourself. खुद से जो वादा किया है उसको निभाते रहिए। Keep promises to yourself. Very powerful. मैं देखिए वो ओवल बनाना चाह रहा हूं, ये ओवल बन नहीं रहा है, मैं भी ओवल बनाता हूं। नहीं बना, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। Keep promises to yourself. Finish what you said you would do, even a small task. कब नेगेटिव वाइब आ जाएगी? ब्रेक पर्सनल प्रॉमिसेस। आपने कुछ सोचा था कि हम ये करेंगे पर वो आपने नहीं किया, तो सेंसेक्स नीचे आ गया। डू स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। दूसरों की थोड़ी थोड़ी मदद, छोटी छोटी बातें करते रहिए। हेल्प अ फ्रेंड डिवाइस, शेयर नोट्स, से थैंक्स। कीप टू योर सेल्फ। स्टे सेल्फ सेंटर्ड, इग्नोर अदर्स नीड। नेगेटिव वाइब्स। बी जेंटल विद योर सेल्फ, forgive mistakes, learn and move on. Beat yourself up, overthink every failure, doubt your worth. Be honest. Admit when you don't know something and fix it. Be dishonest. Fake progress or copy blindly from others. यहां से नेगेटिव वाइब्स आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस खुद पे लो होता जाएगा। कुछ नहीं आता तो नहीं आता, मैं अभी गोला नहीं बना पा रहा हूं ना, तो मैंने कह दिया यार गोला नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, चलिए एक बार और ट्राई करता हूं। ठीक है, एडमिट वेन यू डोंट नो। हाँ बन गया, देखिए। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। रिनीव योर सेल्फ। आज एक्सरसाइज किया, देखिए अब तो ओवल बनना शुरू हो गया। टैप इनटू योर टैलेंट्स। देखिए अब ये फिर से एरो जैसा कुछ बन गया, कोई बात नहीं। यानी आप क्या अच्छा कर पा रहे हैं वो अच्छा करिए, और जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए परेशान मत होइए। बी ऑनेस्ट, बी डिसऑनेस्ट। रिन्यू योर सेल्फ, स्लीप वेल, एक्सरसाइज, listen to music or do whatever you wish to do. Recharge. Wear yourself out
ऑल नाइटर्स, बर्न आउट, जीरो सेल्फ केयर, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? Tap into your talents. Use your strengths, notes, visuals, teaching others. Neglect your talents. Compare yourself till you forget your uniqueness. यहां से बच्चों समझ में आ रहा है कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो हमने बहुत क्विकली क्या क्या देखा? हमने देखा कि कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, सेंसेक्स है, सिम्टम्स क्या है ये हमने देखे, कॉन्फिडेंस सेंसेक्स कैसे बढ़ेगा ये हमने देखा, हमने देखा कि इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे कैसे ये घट जाता है। लेट्स वर्क ऑन इट। इफ योर कॉन्फिडेंस सेंसेक्स opened at 25,000 this morning, where is it now? Has it gone up or down and why? क्या आपने अपने दिमाग में जाने दिया? Building your bull run awareness, track your confidence sensex daily. Action, make small positive deposits. Consistency, build momentum over time. Growth, watch your confidence reach all-time high. Market doesn't define you. That is external event. Test results, others' opinions, setbacks. होने दीजिए, ये तो बाहर के लोग हैं, बाहर की बातें कर रहे हैं. You respond how on the basis of your sentiments. How you react is what you choose. This determines your true value. This is, friends, your confidence sensex. Keep making deposits. 100% your control, 100% your potential, 100% your future. Watch your confidence sensex hit an all-time high. इतनी बात हुई दोस्तों हमारी सेंसेक्स के बारे में। आइए अब एक और चीज की बात करते हैं, उसी पर चलते हैं जहां हम वापस अपने विन टुगेदर पर हैं। सो रूल 4 की बात हम कर रहे हैं, विन टुगेदर। विन टुगेदर में हम विन विन माइंडसेट की बात कर चुके हैं और विन टुगेदर में दूसरी बात हम कर रहे थे कॉन्फिडेंस सेंसेक्स की। ये आ गया कॉन्फिडेंस सेंसेक्स। अब आइए देखते हैं तीसरी बात क्या है हमारे लिए। तीसरी बात है अबंडेंस थिंकिंग। जब तक आपको ये नहीं लगेगा देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी, तब तक आप विन विन पे जा नहीं पाएंगे। इट इज फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोलैबोरेशन। अबंडेंस थिंकिंग is unlocking limitless possibilities. Transform your perspective and discover a world where opportunities are endless. मैं आपको एक बात, मजेदार बात बताऊं। एक साहब ने एक दुकान खोली फोटोकॉपी की। हमारे यहाँ कोई एक जगह है, वहां उन्होंने पहली दुकान फोटोकॉपी की खोली। एक किसी ने और फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। अब तो उनको कंपटीशन लगने लगा। कुछ दिनों में एक ने और खोल ली, फिर धीरे धीरे दुकानें और खुलने लगी फोटोकॉपी की। यानी वो अब फोटोकॉपिंग का मार्केट हो गया। कस्टमर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा कंपटीशन से। ग्राहक की कोई कमी नहीं है। आप जो दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को विद इन योर कैपेसिटी दीजिए। देखिए प्रायोरिटाइज आपने किया हुआ है। आपने रूल 3 में ये जान लिया है कि आपको क्या पहले करना चाहिए, उसी के हिसाब से चलिएगा। आपके पास अपना मिशन स्टेटमेंट है, आपके पास अपने रूल्स हैं। सो स्कैसिटी वर्सेस अबंडेंस इज अ माइंडसेट। There's a two words and two different mindsets. Scarcity mindset इस कहती है कि लाइफ इज अ जीरो सम गेम। यानी मुझे अगर 100 रुपये मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा, या आपको मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसी जिंदगी नहीं होती। लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। डिसीजंस फियर ड्रिवन नहीं होने चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्पिटिशन इज फार लेस वैल्यू एज कंपेयर टू कोलैबोरेशन एंड इट्स नॉट लाइक होर्डिंग मेंटालिटी। अब देखिए जब जब सेंटिमेंट्स नीचे जाते हैं होर्डिंग शुरू हो जाती है, लोग खरीद खरीद के रखने लगते हैं। कोरोना में हमने देखा। और जैसे ही पता चलता है कि अब इन अबंडेंस सप्लाई है, तब खूब लोग होर्डिंग नहीं करते और चलने लगता है। मैं आपको एक बहुत मजेदार घटना बताऊं। 1965 की घटना है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक लड़ाई हुई थी।
तब लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनका भी हम लोगों ने 2 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया। पूरे हिंदुस्तान में खाने की कमी हो गई, विशेष रूप से बंगाल में ये सुनाई पड़ने लगा कि वहां चावल कम हो गया, चावल कम हो गया। पूरे अखबारों में छपने लगा, चावल नहीं है, चावल नहीं है, चावल नहीं है। स्कैरसिटी माइंडसेट, माइंडसेट ये हो गया कि चावल नहीं है, चावल नहीं है, स्कैरसिटी माइंडसेट। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, रोज शाम को रेडियो पर आते थे, तब टेलीविजन नहीं होता था, रोज शाम को रेडियो पे आते थे। जैसे आप मोदी जी मन की बात करते हैं, ऐसे ही वो आते थे, रोज शाम को बात करते थे राष्ट्र से। उन्होंने शाम को जाकर बताया कि चावल की कहीं कोई कमी नहीं है, और हमने कोलकाता के लिए कई ट्रेन्स चावल भर के भेज दिया है। इतना कहने के बाद वो जब जैसे ही अपने रूम से बाहर आए जहां से वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो जो उनके साथ में ऑफिसर्स थे, सेक्रेटरीज थे, वो घबराए, बोले सर हमने कहाँ भेजा है, चावल तो है ही नहीं, चावल तो कहीं भेजा ही नहीं, चावल की तो बहुत कमी है देश में। तो मुस्कुराते हुए बोले मैंने भेजा है, इंतजाम किया है। अगले दिन पूरे पश्चिम बंगाल में आराम से चावल मिल रहा था। कैसे हो रहा था? स्कैर्सिटी माइंडसेट से हम आ गए अबंडेंस माइंडसेट में। लाइफ ऑफर्स मोर देन इनफ, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, ऑप्टिमिज्म इन ग्रोथ, generous collaboration, sharing creates more। आप देखते हैं कोई अच्छी कोचिंग है, तो अच्छी कोचिंग क्यों है? सब अच्छे बच्चे जा रहे हैं, अच्छे बच्चे जा रहे हैं तो सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। एक बड़ा मजेदार मैं आपको और बात बताऊं, अमेरिका में कॉर्न की फार्मिंग बहुत होती है। तो एक साहब के कॉर्न हर बार फर्स्ट आते थे कंपटीशन में, कि इनके कॉर्न, इनके भुट्टे सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे। बहुत अच्छी बात है। और वो अपने आसपास के किसानों को, जो फार्मर्स थे, उन सबको अपने सीड्स दे देते थे। सीड क्या है, बीज क्या है? वही जो भुट्टा पैदा हुआ, उसी को सीड की तरह से दोबारा बोएंगे तो फिर से पैदा होगा। उनका सबसे हेल्दी भुट्टा है कॉर्न। और अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने हेल्दी कॉर्न्स को दूसरे किसानों को भी दे दे रहे हैं। अबंडेंस। लोगों ने पूछा कि आप अपना, हर बार आपका सबसे अच्छा भुट्टा होता है, कॉर्न होता है, और आप फिर भी सब लोगों को दे देते हैं बीज, सीड्स आप दे दे रहे हैं, तो उन लोगों का अच्छा नहीं हो जाएगा? दिस इज स्कैर्सिटी। अबंडेंस सबको दे दिया, सबको दे दिया। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करते हैं। एक बार ये जो साहब थे जब काफी उम्रदार हो गए, तो इनके यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन ने पूछा कि आप ऐसा करते क्यों हैं, सबको क्यों दे देते हैं? तो उन्होंने हंसते हुए राज बताया, इसके जो रहस्य बताया, जो मैं आपको आज बता रहा हूं, अबंडेंस माइंडसेट का रहस्य। उन्होंने बताया कि कॉर्न के लिए पॉलिनेशन जरूरी है, यानी एक पेड़ के, एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे पर जाएंगे तब वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वो बढ़ेगा ही नहीं। पॉलिनेशन कहते हैं इसको। और अगर अड़ोस पड़ोस के खेत में जो भी कॉर्न लगाए गए हैं वो बहुत लो क्वालिटी के हैं, वीक हैं, तो पॉलिनेशन से हमारा भी खराब हो जाएगा। इसीलिए सबको देना चाहिए। अबंडेंस। आप ही के कॉलोनी में एक मकान बहुत सुंदर हो, बाकी सब मकान सुंदर ना हो, तो क्या कॉलोनी अच्छी हो जाएगी? कॉलोनी अच्छी नहीं होगी। जब सारे मकान अच्छे होंगे तो कॉलोनी अच्छी हो जाएगी, आपकी जमीन की भी कीमत बढ़ जाएगी। अबंडेंस। सबको मिले, लाइफ ऑफर्स मोर देन इनफ, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, ऑप्टिमिज्म एंड ग्रोथ, generous collaboration, and sharing create more. This is really important for us. Why abundance thinking matters? It shifts focus from not enough to more than enough, reducing anxiety and opening new doors.
अब आपकी ये चिंता खत्म हो गई, नॉट इनफ वाली। आप एनकरेज करते हैं जेनरॉसिटी। आप रात को नहीं पढ़ रहे, ले जाए किताब, कोई बात नहीं, कल दे देगा। लेकिन विन विन के बाद नो डील है, इतना ध्यान रहे। जब आपको पता चले कि कल दिया ही नहीं उसने, तो यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर दिस विन विन अग्रीमेंट। ओ माय गॉड, देखिए आपसे मैंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, विन विन अग्रीमेंट, यानी इस बंदे के साथ ये वाला काम नहीं चल पाएगा। इट कल्टिवेट्स ग्रैटिट्यूड, इट सेलिब्रेट्स सक्सेस। How to cultivate abundance mindset? One, practice genuine gratitude. आपको किसी ने कुछ करके दिया, उसको genuinely appreciate कीजिए। Give from heart. देने के लिए नहीं दीजिए, दे दीजिए। आपने देखा होगा बच्चे अपने खिलौने के लिए बहुत रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि एक्चुअली उनको वो खिलौना मिला ही नहीं। मम्मी ने अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, उनको खेलने को नहीं मिलता है, उनको खेलने का टाइम कम मिलता है। जिस दिन आप कह देते कि नहीं ये खिलौना तुम्हारा है, जाओ खेलो, अब उसको खिलौने में इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। वो अगर खिलौना अब उसका हो गया, उसने कर लिया, वो खत्म हो गया, बात खत्म। अबंडेंस, एम्ब्रेस ग्रोथ, फ्यू चैलेंजेस, view challenges as an opportunity to learn, expand, and become stronger. Shift from self talk, replace I want with I will, and infuse language with positivity. हम लोगों ने रूल 1 में देखा है reactive language and proactive language. And model abundance. Inspire others through your actions and abundant mindset every day. Your invitation to abundance, imagine living each day knowing there is always more love, success, and opportunity waiting for you. Choose abundance. It's not just a mindset, but a transformative way of living. Start today. I believe there is more than enough. Say it, live it, and thrive. Remember, the pie is infinite. जैसे जैसे होगा वो बढ़ती जाएगी, बहुत आएगा. There is plenty for everyone, including you. So this is third point which we have understood in this rule number 4, win together. The first was win-win mindset. The second is confidence sensex. The third one is abundance thinking. And finally, the fourth point, only 4 points are there in this rule 4, is maturity, the balance of courage and consideration. It's a very powerful thought again. What is this courage and consideration? Let's understand where this balance lies. जहां ये बैलेंस आ जाता है, वहीं स्ट्रेंथ मीट्स कंपैरिजन कंपैशन इन ह्यूमन कैरेक्टर, वहीं मजा आने लगेगा। कैसे आएगा आइए देखते हैं। मेच्योरिटी, हाउ डू वी डिफाइन दिस करेज? करेज इज willingness to express your own thoughts and needs and conviction honestly, even when it is uncomfortable. It means standing up for yourself. आप अपनी बात तो कह पाए, setting boundaries, यहां तक होगा, यहां की बात नहीं होगा, and saying what you believe is right. High courage, you stand for your principles, express what you need, and don't fear disagreement. Low courage, you avoid conflict, stay silent, or give in easily to please others. दूसरे खुश हो जाएं इसलिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, ये लो करेज है। हाई करेज है जब आप देखते हैं कि जो सही है वही किया जाए। दिस इज हाई करेज एंड लो करेज। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या हुई? दिस करेज इज माई नीड्स, इट्स अबाउट मी। दूसरी बात है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? शोइंग रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स नीड्स, फीलिंग्स एंड गोल्स. इट मीन्स लिसनिंग फर्स्ट एंड सीकिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ओ माय गॉड, अब ये जो लिसनिंग फर्स्ट है, रीडिंग फर्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है,
ये हमारा रूल नंबर 5 है, इसकी बात हम कल करेंगे। What is this high consideration? You value others' perspectives, listen actively, and seek solutions that work for everyone. Low consideration, you dismiss others' needs or focus only on your gain. Or maturity क्या है? It's a balance between courage and consideration. If the courage is high and consideration is low, then it will lead to win-lose. If the consideration is high and the courage is low, it will lead to lose-win. If both are low, then it will be lose-lose. If both are high, then friends, it will be win-win. And the highest order is win-win or no deal. इसके बाहर जाएगा। नई बात बन रही, यहां आपके साथ हम मिलकर नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। Some other day, something else. परेशान मत होइए। आपने नोट्स दिए, आपने उसको पढ़ाया, वो नोट्स नहीं दे रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं। अब नो डील पे तो आ गई ना बात, रोज परेशान होने की जरूरत नहीं है, नो डील पे आ जाइए। सो विन विन इज अ बैलेंस बिटवीन हाई करेज एंड हाई कंसिडरेशन। दिस इज विन विन। Maturity is beyond age, beyond authentic expressions, growth catalyst. How can you develop? Cultivate self-awareness, practice empathy. Self-awareness मैंने देख लीजिए कि कब आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। Build courage, आप अपनी जरूरतों को कह पाते हैं। And embrace abundance. This is developing maturity. Transform your study approach, replace competition, build together mutual growth. So the underlying principle is effective relationships are built on mutual benefit, respect, and shared success. It's in CA context, when one student shares, the whole batch rises. Pollination, coaching ही better हो जाती है, वो जगह improve कर जाती है. Collective success happens. So friends, the rule 4 is win together, win-win mindset, confidence sense, abundance thinking, maturity, the balance of courage and consideration. इतनी बातों से हमारा ये रूल 4 कंप्लीट होता है। आज की मुलाकात बच्चों इतनी ही। रीड, रीजन एंड रिपीट, मार्क्स तो मिलेंगे ही। आपके पास अगर कोई और बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने कहा कि ये पावर पॉइंट मिल जाए, तो पावर पॉइंट तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। हमारा स्कैनर सीए फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, जहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, सी यू टुमारो।